Hello friends, I welcome you all in this video lecture series and this is the second lecture of our series. In the first lecture, as we have already seen the important question of the number theory, right? As we know, the total modern algebra is divided into basically three parts. First part is the problem related to the number theory. Second part that is related to the group theory, and third part that is the ring theory. So we have already seen the important problem of the number theory. Now in this lecture I have included two most important types of question of the group theory, and this topic means the order of the element is very important. If you look the CSIR paper, then they frequently ask the order of element, right? Order of element are related questions. So now in this lecture we focus on two types of basically problem. First, there has several time asked what are the order of the element, right, in Sn, and now the second type of problem which is asked in Zn, right, number of order of element in Zn or number of order in Zn cross Zm. So these topics means this topic related to the order of element is very important. And first question I have taken from the June 2018. This question is from the part B, and one question from the same topic I have taken from the part C. एक क्वेश्चन लिया थोड़ा सा old और एक क्वेश्चन लिया एकदम new, right? So now we see. So now if we talk about Sn, तो आप जानते हैं Sn, this is symmetric group, right? Now if you look this S7, in this question basically they ask about S7. So we know number of element in S7, that is factorial 7, right? Number of this symmetric group is factorial 7, which is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, right? So now this number is very large. How we can get the number of element of order 6 within 2 or 3 minutes? So this means that there has some short trick, or there has some important result that we use and get the result within 2 or 3 minutes. देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, CSIR का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, you will have to solve within 2 or 3 minutes, right? Any problem, either it is from part B or part C. The reason is very clear. You have a limited time. In the limited time you have to solve these type of questions, right? So now first we are going to solve this question, and before solving this question I just tell you the important result that you can use in this problem and get the result very easily, right? Very easily. Now first you write down how. First we read out what are the question, right? First I have already seen these two questions. So let S7 denote the group of permutation of the set this, right? This means that this permutation group or symmetric group S7, which is basically generated by these numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This symmetric group is basically generated by these 7 element. Which of the following is true? आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से true है. This means that there has only one option since it is from the part B. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. There are no element of order 6. There are no element of order 6 in S7. अब देखिए सबसे बड़ी बात है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये भी हमें समझना है. देखिए आपको पहले भी मैंने अपलोड किया है लेक्चर, उसमें भी बताया है. किसी भी देखिए दो चीजें हैं. फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप, दैट इज द अदर थिंग, मींस नंबर ऑफ, कभी भी पूछे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप, राइट, इन द ग्रुप. जो भी आपका सेट होगा
उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप, और आप बोल सकते हो उस सेट में जो भी सेट होगा जो ग्रुप फॉर्म करेगा, दैट इज बेसिकली वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ द ग्रुप। नाउ सेकेंड इज व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अगर मैं कहूं कि S7 के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, राइट, किसी पर्टिकुलर, लेट सपोज कर लीजिए S7 का ये A एक एलिमेंट है, तो इसकी भी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि A रेज टू द पावर n, अगर मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन है तो A रेज टू द पावर n, दैट इज कम आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर एडिशन है, इन दैट केस NA बिकम व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट। इतना पावर मैं A पे करूं कि ये क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए उसी सेट का, तो हम क्या बोलेंगे, दिस n इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। देखिए सिमेट्रिक ग्रुप है, आपको सभी को पता है, जिस तरीके से हम S3 को डिफाइन करते हैं उसी तरीके से S7 को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं S3 विच इज जनरेटेड बाय विच एलिमेंट, विच इज जनरेटेड बाय 1 2 3, और चूंकि ये सेट छोटा है तो हम आसानी से बना सकते हैं फैक्टोरियल 3, दैट इज कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट। और आप सभी जानते हैं वो एलिमेंट क्या है, S3 के जो एलिमेंट होते हैं सिमेट्रिक ग्रुप के, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2, राइट, 1 3 2 3 1 2 3 and 1 3 2, right. These are the 6 element of the symmetry group S3. In the similar way we can define the number of element in S7. S7 में भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी जैसे मैंने दिखाया S7 में कितने एलिमेंट होंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तो बहुत आसान था कि फैक्टोरियल 3 आपने निकाला, दैट इज कम 6, बट अगर यहां पे आप कैलकुलेशन करेंगे फैक्टोरियल 7, दैट इज a very big number, right, and it is very difficult for us to calculate the value of which number is basically here multiply by 4, 7 6 5 into 4 into 3 into 2, right. अच्छा, इसमें आपको ये बता पाना कि किसकी आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको बहुत सिंपल है, 1 2 लिख लीजिए। 1 2 का ऑर्डर आप पता कर सकते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, राइट। कैसे, आपको ये पता है 1 2 मीन्स व्हाट, 1 goes to 2, 2 goes to 1 and 3 goes to 3। ऐसे हम लिखते हैं, 3 को आप इग्नोर कर देते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरीके से भी परम्यूटेशन ग्रुप को आप डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। भले ही यहां पे मैं शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा, विद इन 2 मिनट्स आप सॉल्व कर लेंगे, बट यस यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। नाउ first we put whether it is equal to identity element, no, it is not equal to. Now we put 2 power and check whether this will be identity element. Identity element means what, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, that is the identity element for this case, right. So in this way you have to multiply and check, but yes, in the examination no need to go for the manual method. The reason is very clear, because once you apply the manual method it will take more time. आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3, और जैसा मैंने आपको बताया दिस इज 2 1 3। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करिए, अगर ये क्या आ जाए, इफ इट कम आइडेंटिटी एलिमेंट, वी कैन से दैट इट्स ऑर्डर इज बेसिकली व्हाट, इट्स ऑर्डर इज 2, राइट। सो यू कैन चेक हियर, 1 goes to 2, देखिए आप यहां से स्टार्ट करेंगे सेकंड से, 1 goes to 2 and 2 goes to 1, so 1 goes to 1, 2 goes to 1, देखिए यहां पे बहुत इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 goes to 1। अब चले आइए यहां पे 1 goes to 2, so this 2 goes to 2, और अपने आप आपको पता है 3 goes to 3, yes this is identity element. So the order of this, अब आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2, very easy. You can get these type of things very easily, but yes if the number is small, अगर नंबर छोटा है तो आसानी से आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इफ द नंबर इज वेरी लार्ज, हाउ वी कैन गेट द रिजल्ट। चलिए उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम S7 में आसानी से शॉर्ट टेक्निक से इंपॉर्टेंट रिजल्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो देखिए, जब भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन SN की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप नोट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ
एलिमेंट इन Sn, इन Sn, ये एग्जिस्ट तभी करेगा, इट्स एग्जिस्टेंस इज ओनली वंस, वंस क्या है आपका, देखिए जो जो ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे वो बेसिकली क्या होते हैं, एलसीएम ऑफ, एलसीएम किसका होता है, पार्टीशन ऑफ एन। आप इस एन का पार्टीशन कर लीजिए, जो भी पार्टीशन का एलसीएम आएगा दैट इज ओनली द ऑर्डर ऑफ दिस एसएन, वही सिर्फ ऑर्डर होंगे इस एसएन के। वेरी इजिली, चलिए हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से आसानी से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि एस एन का पार्टीशन क्या हो सकता है। देखिए 7 यानी 7 का पार्टीशन बेसिकली क्या होता है, हियर एन इज बेसिकली 7। तो चलिए जो जो पार्टीशन का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा वो उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसके अलावा कोई भी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 7 है, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा पार्टीशन कर सकते हैं, कुछ ऐसा पार्टीशन 7 का हमें करना है जिसका एलसीएम 6 आ जाए। तो बहुत आसान है, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 और 3 हमें पता है इसका एलसीएम क्या होता है, 1 होता है। 2 + 3 + 1 लिख सकते हैं, +1 ऐसे भी लिख सकते हैं। या अब देखिए यहां पे एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 2 3 1 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वेरी क्लियर। या फिर इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 6 + 1 = 7, ऐसे भी पार्टीशन इसका ये भी होगा। और अगर आप एलसीएम निकालते हैं 6 और 1 का तो इट इज अगेन 6, तो इसका तो एग्जिस्ट करेगा इस ऑर्डर का। देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन एसएन दैट इज कैलकुलेटेड बाय व्हाट, एलसीएम ऑफ द पार्टीशन ऑफ एन। अब जो भी एन होगा उसका पार्टीशन करने पे अगर है तो वो एग्जिस्ट करेगा, राइट। ये यही इसी की बात कर रहा है। तो कह रहा है नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, ये तो गलत स्टेटमेंट कह रहा है, इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। यहां लिखा हुआ नो, नॉट, ठीक है, तो ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्टीशन, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। कोई ऐसा पार्टीशन हो सकता है 7 का जिससे एलसीएम क्या आ जाए, 7 ही आ जाए, एलसीएम क्या आ जाए, 7। या 7 = 7 लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 7 क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो इस ऑर्डर का भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। यस, दिस यहां पे लिखा हुआ नो एलिमेंट एग्जिस्ट। देखिए आपको बहुत ध्यान से ऑप्शंस को भी ध्यान देना है। यहां लिखा हुआ नो एलिमेंट, तो ये भी आपका कट हो जाएगा क्योंकि ये भी ट्रू है, इस इतने ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी मूव ऑन द थर्ड ऑप्शन, एंड अगेन इन द थर्ड ऑप्शन दे आर जस्ट मेंशन कि नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 अगर कोई 7 का कुछ ऐसा पार्टीशन कर सकते हैं जिससे एलसीएम क्या आ जाए, 8 आ जाए। देखिए कोई भी ऐसा पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि 2 और 4 ले लूं तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम तो 4 आता है, ठीक है, और इसका एलसीएम नहीं हो सकता। 7 का आपने अभी पार्टीशन देखा, 7 ही है। देखिए वी नाउ मूव ऑन द, दिस इज थर्ड ऑप्शन, राइट। नाउ नो, अगर आप देखिए यहाँ पे नो पार्टीशन एग्जिस्ट, 3 + 4 करेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। कोई ऐसा पार्टीशन नहीं है जिसका एलसीएम, विच एलसीएम इज व्हाट, क्या आ जाए, 8 आ जाए। आप करके भी क्रॉस चेक कर लीजिए, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बट यस, वी अगेन चेक फॉर द S7 सो दैट द एलसीएम कम 10, ऐसे भी चेक कर लीजिए। देखिए आप चेक कर सकते हैं, 7 को हम यहां पे लिख सकते हैं 2 + 5। अगर हमें एलसीएम 10 ले आना, आपको पता है एलसीएम 10, 2 और 5 का पार्टीशन है। सो देखिए एलसीएम ऑफ 2 and 5 which is basically 10, right? So in this way this is also exist, लेकिन यहाँ पे लिखा है नो एलिमेंट, तो ये भी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। This means that only one option is correct in this case and that is option number this C, right? So आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए CSIR के शॉर्ट टेक्निक की जरूरत है, हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट की जरूरत है, बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज समझने की जरूरत है, तभी हम डिफरेंट
टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए हर बार जो प्रॉब्लम आते हैं कुछ नए टाइप के आते हैं। सो अंटिल एंड अनलेस वी हैव ए कमांड of all types of question we cannot say that we will solve the question in the exam। जब तक हमारे पास सारे टाइप के प्रॉब्लम्स को ऊपर कमांड नहीं होगा हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते ऐसे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करते हैं। So now we move on the second type of problem, and this problem is basically, first we read the question. G is Z10 cross Z5, right? This is a group which is basically Z10 cross Z5 15, right? So which type of element exist in this group? देखिए जब भी दो सेट का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, this means that this will be the element will be like this। ordered pair के फॉर्म में जो भी एलिमेंट इसका होगा, एलिमेंट ऑफ व्हाट, एलिमेंट ऑफ दिस इज बेसिकली एलिमेंट ऑफ दिस Z10 क्रॉस Z15, राइट। दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है G कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये जो G है मीन्स Z10 क्रॉस Z15, ये कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करेगा कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। सेकंड, G कंटेन एग्जैक्टली 5 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, कह रहा ऑर्डर 3 के 5 एलिमेंट कंटेन करेगा। थर्ड में कह रहे हैं ऑर्डर 5 के 24 एलिमेंट्स ऐसे कैलकुलेट करेगा, और ऑर्डर यहां पे 10, देखिए यहां पे लिखा हुआ ऑर्डर 10 के 24 एलिमेंट ये कंटेन करेगा। सो हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है डायरेक्टली ऐसे ना दे, कुछ और टाइप से आपको इस क्वेश्चन को भी टर्न करके पूछ सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए फिर वही मैं बोलूंगा कि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने लगूं तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों में ही चाहे Z10 और Z15 की अगर मैं बात करूं, वो दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बहुत ज्यादा होंगे, और उस बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि किस एलिमेंट का मैं पावर करूं और उसका पावर करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। यानी 2 करने पे कौन सा एलिमेंट है जिसका 2 पावर करने पे, तभी तो हम बताएंगे ऑर्डर 2 का मतलब क्या है, उसका 2 पावर मैं करूं और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, राइट। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शॉर्टलिस्ट इन ए बिग डेटा, बहुत इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वी कैन यूज दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड गेट द रिजल्ट वेरी इजिली, राइट। सो फर्स्ट यू राइट डाउन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेट सपोज G that is the group which is basically Zm cross Zn, लेट सपोज कर लिया अगर है। सेकेंड, अगर इन दोनों का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो, M और N का दोनों 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 ना हो, राइट। 1 हो तो भी वो अदर केस है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं वो जिसमें GCD दोनों का 1 ना हो, राइट। इन दिस केस इफ यू जस्ट फाइंड व्हाट इज द GCD, तो देखिए 10 और 15 इन दोनों का GCD जो आएगा वो आपका आ जाएगा 5, राइट, जो कि 1 नहीं है। तो इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपको ध्यान देना है कितने ऑर्डर का एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करता है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर, आप कोई भी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए के क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का, एनी ऑर्डर की, लेट सपोज कर लीजिए इस के ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा, वो कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट की मैं बात करता हूं, जो भी एलिमेंट, अब पहली कंडीशन क्या है, जो ये के है, LCM ऑफ जो भी एलिमेंट लेंगे ए बी, उसका एलसीएम क्या होना चाहिए, इस के बराबर होना चाहिए, राइट। अब
आप देखिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा है, अगर आप मैच करावें 2 फर्स्ट ऑप्शन को, तो ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं जिनका एलसीएम 2 आएगा, ये आपको ध्यान से सोचना है। सेकंड कंडीशन आपसे कह रहा है कि ए जो है, ए जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो m को डिवाइड करना चाहिए, दिस m को, राइट, एंड सेकंड एलिमेंट मस्ट डिवाइड द n। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वो m को और b n को डिवाइड करना चाहिए। ये अगर डिवाइड कर रहा है तो इसके ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। नाउ आई जस्ट सिंस इट इज फ्रॉम द पार्ट सी, so it has possible there has a more than one option may be correct। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बहुत इजी है, बहुत इजीली आप बता सकते हैं। देखिए अब मैं बोलूंगा कि ऐसा कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लेना ए बी सच दैट विच एलसीएम इज बेसिकली 2। एक केस बता के देखिए इसमें आपको लेना है क्या, 2 1 ले सकता हूं, यस 2 1 ले सकता हूं। वाई? बिकॉज इट्स एलसीएम क्या है आपका 2 आ रहा है। एक और कंडीशन आपको बताया, ए एम को डिवाइड करना चाहिए, तो एम यहां पे क्या है, देखिए यहां पे 10 है और एन क्या है 15 है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 2 डिवाइड व्हाट 10 डिवाइड करेगा, यस, एंड 1 डिवाइड 15, यानी ये हम ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं 2 and 1 वी कैन कंसीडर इन दिस केस। सेकेंड केस और क्या हो सकता है जिसका एलसीएम आपका क्या आ जाए, आपका एलसीएम कितना आ जाए बताइए, 2 आ जाए। तो एक केस ऐसे भी ले सकते हैं 1 और 2, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 2। बट यहां पे कंडीशन देखिए 1 डिवाइड करना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसको डिवाइड करना चाहिए 10 को, तो डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्या 2 15 को डिवाइड करेगा सेकेंड एलिमेंट? नो, ये कहां 15 को डिवाइड करता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में नहीं ले सकता। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर? 1 2 को कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि एलसीएम इज 2 दैट इज ओके, बट इट डज नॉट डिवाइड 10 एंड 10 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन सेकेंड जो एलिमेंट है दैट इज नॉट डिवाइड 15, 2 डज नॉट डिवाइड 15, सो वी कैन नॉट टेक दिस एलिमेंट। नाउ व्हाट अबाउट द अदर? कोई और भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं, यस 2 2, इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जिसका एलसीएम 2 आ जाए। अब देखिए यहां पे इसका भी 2 आएगा, बट सेम क्वेश्चन 2 डिवाइड 10, राइट, 2 डिवाइड 10, इसका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 10 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 जो सेकंड एलिमेंट है वो 15 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये हम ए भी नहीं ले सकते। सो ओनली कौन सा ऑप्शन मिला हमें, केवल हमें एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है 2 1, जो जिसका ऑर्डर क्या है 2 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी इस बात करें ऑर्डर्ड पेयर में आपको कुछ भी नहीं करना है। जेड के केस में 5 2 into 5 1, आपको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, इस तरीके के करस्पॉन्डिंग, देखिए यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, बहुत सिंपल सा फार्मूला है 5 2 into 5 1, राइट। तो जो भी आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा उसका बस आपको क्या निकालना है 5 2 into 5 1, 5 2 और 5 1 आप जानते हैं 5n कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज आयलर्स फंक्शन। और आयलर्स फंक्शन आप कई बार मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया है, आयलर्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहां से आयलर्स फंक्शन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड 1 की वैल्यू 1 होती है, दिस मीन्स दैट ओनली 1 एलिमेंट इज एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर 2, केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर 2 का। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए इसी तरीके से आप, चूंकि ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, आपके पॉसिबिलिटी क्या है, आपके मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट। अब सेकंड आपको क्या निकालना है, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, राइट। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसका एलसीएम क्या आ जाए। नाउ वी मूव ऑन द ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कितने
ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट जो आपको बताया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। दोनों का एलसीएम के बराबर होना चाहिए जिस ऑर्डर की बात कर रहा है, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट फर्स्ट m को और सेकंड n को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए। तो देखिए सिमिलर टाइप से आप ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी को भी आप बहुत आसानी से ऑप्शन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं पूछूं कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है किसमें, Z10 और Z15 में। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान देनी, जो भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, वट एवर द ऑर्डर्ड पेयर इज हियर, इट कैन नॉट बी गो बियॉन्ड दिस 10। फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट बी गो बियॉन्ड 10 एंड सेकेंड एलिमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड 15, राइट। तो आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर्ड पेयर मतलब एलसीएम आप लीजिए और एलसीएम 3 आ जाए और इसके एलिमेंट हैं। तो बताइए फर्स्ट एलिमेंट क्या ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 3 1 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं, और सोचिए क्या हो सकता है जिसका एलसीएम क्या आ जाए 3 आ सकता है। तो देखिए 1 3 फिर वही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। फर्स्ट एलसीएम इज दैट इज 3, in all these cases LCM is 3, so LCM in all these cases LCM it is okay, but we have to satisfy the second condition also. 1 divide 10 it is okay, 1 divide whether 3 divide 15 that is also okay, but what about the this option 3 does not divide 10, इसको तो डिवाइड करेगा ही नहीं, तो ये एलिमेंट 1 तो डिवाइड करेगा 15 को लेकिन 3 नहीं डिवाइड करेगा, तो ये सेकंड कंडीशन को फेल कर रहा है, ये भी नहीं होगा और अगेन ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 10 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 15 को डिवाइड करेगा। तो अपने पास सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है, लेकिन अब इस एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो रहा है। तो देखिए अब इसके करस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या क्या हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 3 के? देखिए ये हमें ऐसा एक एलिमेंट लेना था और उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द आयलर्स फंक्शन। सो 5 1 into 5 3, राइट, एंड 5 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है आयलर्स फंक्शन, और 5 3 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, राइट। तो प्राइम नंबर के केस में आयलर्स फंक्शन की वैल्यू क्या होती है p-1, और ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन है 1 - 1/3। सो देखिए 3 इंटू 2/3 3 3 कैंसिल, यू विल गेट 2। तो कितने ऐसे एलिमेंट होंगे ऑर्डर 3 के 2 होंगे, जबकि यहां पे लिया है 5। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर सकते हैं। चलिए ये आप खुद से ट्राई करेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। आई जस्ट गिव यू दिस अनसॉल्व प्रॉब्लम टू सॉल्व यू, राइट। तो जो सेकंड केस, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन, उन दोनों ही केस में आपको 25 एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे मैंने ऑप्शन नंबर ए और बी को कैलकुलेट किया, इन द सिमिलर वे आप कैलकुलेट करिए। अगर कुछ कोई भी दिक्कत आती है यू कैन जस्ट राइट योर मैसेज इन द इनबॉक्स, ठीक है। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो देखिए हमारा ऑनलाइन बैच भी चल रहा है। अगर आपको लगता है कि हर टॉपिक के लिए आपको बेसिक से एडवांस तक सीखना है तो आप जो है हमारे इस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है और ये टारगेट है जून 2021 के लिए। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर टाइप के प्रॉब्लम्स, ऑल द 10 पेपर जो है इसमें कवर किए जाएंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हर पेपर्स के टेस्ट हैं, इसमें इंक्लूड हर पेपर के बेसिक से एडवांस तक के लाइव डिस्कशन, और इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी सारे लेक्चर्स के अवेलेबल हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए बेसिक से एडवांस सब कुछ सीखने के लिए, तो हमारे ऑनलाइन बैच को भी आप ज्वाइन
कर सकते हैं। ये टाइम टेबल है जो लाइव डिस्कशन का है। इसके अलावा रिकॉर्डेड वर्जन तो आपको अवेलेबल ही कराए जाएंगे, और मार्च बैच के लिए भी जो चीजें आपकी रिकवर नहीं हुई है उसको भी आपको रिकवर कर दिया जाएगा, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ कवर करना है तो आप हमारे ऑनलाइन बैच